Champions Trophy that is set to take place in Pakistan and Dubai next month. And Pakistan, after all the back and forth between India and the ICC, and then finally relenting to the hybrid model, now seems to have hit a major roadblock in its preparations for the Champions Trophy. The venues that are set to host a majority of the matches is not ready yet. Construction work is still underway, and yes, just a little over a month left now for the event to kickstart. So let's tell you what we are hearing and what we know as of now. There are 3 venues that will host matches of the 7 of the 8 teams in Pakistan. Lahore, which will be at the Gaddafi Stadium, Karachi, the National Stadium, and Rawalpindi Cricket Stadium. That's the 3rd venue. All 3 have been in need of a major facelift. And by that, I do not just mean the basic superficial makeup that is required to beautify the venues and get it all ready for that ICC event. No, I mean hardcore work on developing the entire stadium. That involves many aspects, from preparing the outfield, refurbishing the stands that will seat all the spectators coming in, redesigning the dressing rooms and ये जो पर्टिकुलर बात है ना कि भाई स्टेडियम का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ मैं नहीं, ठीक है, इवन कि सम ऑफ द पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वेर ऑल्सो सेइंग कि भाई अभी तक इनका कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई पहले तो उन्होंने गाली दिया क्योंकि हम लोग इंडियन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इंडिया की साजिश है, ठीक है, इसमें भी उनको इंडिया का साजिश लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं इंडिया का क्या, इंडिया ने उल झलूल बात कर रहा है, कुछ वैसा नहीं होगा, सब कुछ सेट है, ठीक है। 2 दिन पहले ये खबर है कि भाई साहब अभी तक कंस्ट्रक्शन काम चालू है, अब उसमें भी इंडिया का साजिश है। बात हुआ था कि आईसीसी, ठीक है, पीसीबी को एक अमाउंट दे रहा है कि भाई इसमें तुम थोड़ा इधर ये ठीक कर लो, वो झल्ला ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इन गधे के बच्चों को लगा कि भाई इंडिया आएगा उसके बाद वो पैसा लाएगा, तो इसलिए पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा स्टेडियम का ही आँख मार दो, तो इन लोग पूरा स्टेडियम को ही उड़ा दिया, ठीक है। अब इंडिया तो आ नहीं रहा है, पैसे भी नहीं मिले, तो इनका ही लॉस हो गया है, ठीक है। तो वही रिपोर्ट जो है सामने निकल के आ रही है आपके सामने, और देखिए आगे वीडियो। and making them state of the art in other areas around the periphery of the stadium, which also includes the hospitality boxes and all of the other paraphernalia. This is being carried out in all the 3 venues, and it had to because this is a historic event. एमएसएमई बिजनेस ओनर के बच्चे क्यों जाके अमेज़न और गूगल पे जॉब करते हैं या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं? आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखा। For many reasons. First and foremost, Pakistan is hosting an ICC event for the first time in nearly 30 years. International cricket, in its truest sense, is returning to Pakistan in a major way. Yes, they've hosted certain teams in bilateral events, but an ICC event with the top 8 teams taking part, technically 7, is a major challenge for the country. And ICC in particular is particular that the host country meets all the requirements to make sure this tournament goes by smoothly. So there is a lot of pressure on the PCB to deliver and deliver right. And the ICC to avoid any embarrassment for going ahead with this plan, especially when Pakistan have missed the end of December deadline to hand over the stadiums. The deadline was December 31st. ये भी एक बात है, ये जो स्टेडियम का जो कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम धड़ेगा ना, उसका डेडलाइन था 31 दिसंबर। आज कितना तारीख है? आज 12 जनवरी 2025। मतलब अगर आप मोट माट के भी लगा ले तो भाई 9-10 दिन तो इन्होंने एक्स्ट्रा ले ही लिया है। अभी बोले हम लोग 25 जनवरी तक दे देंगे, ठीक है, या 25 फरवरी तक कर देंगे। तो मेरे को लगा करा तो लेंगे, लेकिन ये जो बेइज्जती जो हुआ ना इनका कि भाई साहब आप एक तो टाइम पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करा पाए, ठीक है, फिर आपका होटल का क्या है, आपका सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या है, वो सब भी रहेगा इसका मसला, ठीक है ना। मेरे को ये नहीं, मतलब मेरे को ये शक नहीं है कि पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट नहीं होगा। मेरे को इसमें डाउट हो रहा है कि उन लोगों का फैसिलिटीज़ कैसे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, वहाँ पे पानी नहीं रहता, वहाँ पे बिजली नहीं रहता है, तो वो तो बस वक्त ही बताएगा। 2024, they missed that. And not just that, considering the amount of money that's being used on the 3 venues, the ICC is closely scrutinizing the construction work that is underway.
Here's the staggering amount that is being spent on the three stadiums. And of course, I'm going to start with Lahore, the Gaddafi Stadium, which is the main one. $90 million is the total amount that's allocated and that's being spent on the Lahore Stadium. All of that work is still pending. You've got steel structure pavilion that is set to be built, concrete office building that was missing. Of course, there's a moat as well, the LED floodlights, and of course the seats, all the external development work as well that is pending. And of course यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि भाई साहब इनके पास सीट बनाने का भी खुद का पैसा नहीं था। इन्होंने कर्जे में चाइना से सीटें बनवाई और वहाँ पे उसको लगवाया। मतलब जिस कंट्री में भाई साहब तुम एक सीट नहीं बना सकते हो, एक सुई नहीं बना सकते हो, तुम लोग बोलते हो कि भाई साहब हम लोग कश्मीर ले लेंगे। ले लेना भाई, ले लेना। पहले एक सीट तो खुद का बना लो, उसके बाद कश्मीर ले लेना, ठीक है। Of course, we still have to consider that the stadiums are just 2 weeks away from delivering. This is what the Gaddafi looks like. That stadium there, those visuals that you're seeing, you just saw, looks far from ready or even close to completion. There is a lot of work still left, and that's what it looks like just about now. Those are the pictures that have been doing the rounds across social media networks. What about the other two venues? Here's the work that's underway in the second stadium. There's a lot of money riding on here as well. This is Karachi, of course, $45 million that is allotted to the redevelopment and the work on Karachi. Again, quite a bit of. तो भाई साहब ये तो था, ठीक है, इनका जितना भी तामझाम था इनका कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे, ये वो जितना भी इन लोगों का नाटक था इन लोगों ने किया, ठीक है। अभी आपको सामने ही दिख रहा है कि भाई साहब इन लोग अभी तक कंस्ट्रक्शन काम ही खत्म नहीं हुआ है। तो भगवान को ही पता है भाई ये लोग कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके जो यूट्यूबर्स है, कुछ महान यूट्यूबर्स हैं इनके, वो लोग कहते हैं कि इंडिया साजिश फैला रहा है। ये जो मीडिया वाली मैडम कह रही है ये भी तो साजिश ही फैला रही होगी, तो फिर पूरा दुनिया ही साजिश फैलाता है। दरअसल पाकिस्तान को लगता क्या ना कि वो दुनिया का ना अमेरिका है। उसको लगता है पाकिस्तान इज एन यूनिकॉर्न, इज अ हब ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। तो इसके लिए उनको लगता है कि पूरा दुनिया उनके खिलाफ साजिश करती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे सीट बनाने का औकात ना हो, बिजली ना आता हो, पानी ना आता हो, ठीक है भाई। तुम लोग को इंडिया का ही ऑब्सेशन रहता है ना, ये देख लो तुम्हारा इंडिया का ऑब्सेशन, तुम्हें डूब लेगा ये ऑब्सेशन तुम्हारा, ठीक है। तुम लोगों ने गेम खेला था कि इंडिया आएगा, उसके बाद वो लोग पैसा भी लेके आएगा, मार्केट वैल्यू भी लेके आएगा, रेवेन्यू भी लेगा, स्पॉन्सर्स भी लेके आएंगे, उससे हम लोग खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसे छापेंगे। हो गया आगे स्पॉन्सर्स। यही ऑब्सेशन पाकिस्तान को एक दिन ले डूबेगा, और आधा आधी ले डूब चुका हुआ है, ठीक है, जो सच बात है। और आधा जो भी एकदम पॉलिटिशियंस ये वो कर करा के डुबा देंगे पूरा देश।